Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 12th of March. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. Students, in this video we will be talking about the second advanced estimates of production of major agriculture crops that will be including Kharif and Rabi. Then we will be talking about Fishery Startup Conclave 2.0 that was held in Hyderabad, Telangana. Then India and Armenia, they have signed an MOU. We will be discussing about it. Next thing, we will be talking about 24 reprinted Sastu Sahitya books has been recently released by Amit Shah. We will be discussing about them and many more news in this video, students. So stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise they are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with National Affairs students. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. They have released this second edition of the Advanced Estimates of Production of Major Agriculture Crops that are your Kharif crops and Rabi crops. Right? Here, remember this data, what this will talk about is that what is the output, what is the growth, right? Is in which areas the growth is increasing, in which areas the growth is coming down, right? Where the prices can be high and so on. Correct? So here you can see Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, they have released this second edition of the Advanced Estimates for the Production of Major Agriculture Crops that highlights the record outputs in key crops areas such as your rice, wheat, maize, groundnut and soya bean. Then how were these data collected? They were collected through remote sensing, weekly crop weather and also the state reports. Apart from this, if we talk about the food grains, right? Say for example for the production of Kharif, it estimated around 1,663 lakh metric tons, right? Then if we talk about Rabi, the production projected at 1,645 lakh metric tons, right? And so on. Similarly for rice, it was projected around 1,206 lakh metric tons, right? Wheat production around 1,100 lakh metric tons, maize around 248 lakh metric tons and so on. Next is Fisheries Startup Conclave 2.0 was held in Hyderabad, Telangana recently and has launched an application that is NFDB application. What is this NFDB? NFDB is your National Fisheries Development Board, right? A mobile application for this has been launched. It was launched during the Fisheries Startup Conclave 2.0 that was held in Hyderabad, Telangana. The aim of this was to promote entrepreneurship, technical advancement and sustainability in the fisheries and aquaculture sector. Very important students, take a note of this. Apart from this here, Fisheries Startup Grand Challenge 2.0 was also launched here that will support the upcoming startups in manufacturing and related fields in the fisheries sector. And 10 winning
startups will be receiving a grant of 1 crore rupees in funding. Next is if we talk about the fishery startup grand challenge, we just saw 1 crore rupees will be given to 10 winning startups here as a funding. Next is India and Armenia, they have signed an MOU for cooperation in the medical product sector, right? So in both these countries we will be seeing that we will be strengthening bilateral relation in the medical sectors, specifically in the medical product development, right? Exchange of those medical products for enhancement and doing research and development on those medical products, right? Also remember Armenia, it became a member of International Solar Alliance recently, and more than 1000 Indian students that are studying in Armenia, they have strong educational ties, right? And we will be seeing both cultural and relation cooperation will be enhancing here. Next is Union Minister Amit Shah, our Home Minister, has released 24 reprinted Sastu Sahitya books and a 50 rupees coin in Ahmedabad, right? So recently 24 reprinted books by Ahmedabad, Gujarat based Sastu Sahitya, right, has been published, right? Take a note of this first thing. Second thing is a 150 rupees commemorative coin has been launched in the honor of 150th birth anniversary of Acharya Bhagwat Shri Buddhi Sagar Surishwar Maharaj, right? Take a note of this. And these books were published by this trust, and this trust was founded in 1907. Moving on to international affairs, students, our external affairs minister Dr. S. Jaishankar visited UK and Ireland from 4 to 9th of March, right? This was to enhance the bilateral relation between UK and Ireland. Correct? Important. During this visit, he inaugurated 2 new Indian consulates in the Belfast, Northern Ireland in UK, and Manchester, England, UK. What this will do is, this new consulates, it will enhance and boost the regional economic ties and investment in those particular area, right? What is the capital of Ireland? It is Dublin. Next is India Cambodia held third FOC to strengthen the bilateral cooperation in the health and digital technology sector, right? What is this FOC? FOC is your Foreign Office Consultations, right? This was the third edition of the Foreign Office Consultation. It was held in Cambodia, right? And it is India and Cambodia that together held this, right? It was held by them. This meeting allowed both the countries to discuss on various range of bilateral relation products, political cooperation, trade, defense, development, heritage conservation, and many more, right? Also, Cambodia is a pivotal partner in India's Act East policy, right? Apart from this, the Asian Traditional Textile Museum, this is in Cambodia, which was established in 2014 with Indian support under the Mekong Ganga Cooperation Initiative, right? And here at this Asian Traditional Textile Museum recently, Dr. S. Jaishankar visited it, right? Next is CIPRI report for 2024. Ukraine has topped as the world's largest arm importer, and India is on the second position. That means we are heavily dependent on the import of these products. We are importing more, right? So it is CIPRI that has released the trends in international arms transfer 2024 data, right? In this, Ukraine has emerged as the world's leading importer of major arms between 2020 to 2024, right? And India ranked the world's second largest arm importer during the same period, right? And USA, France, and Russia, they were the top global exporters during the same period, that is 2020 to 2024. If we talk about CIPRI, where is the headquarter of CIPRI? It is in Solna, Sweden. It was established in 1966. Moving on, here you can see first, second, third, and fourth. Next is India Kyrgyzstan military exercise, that is Khanjar 12, right? This exercise was held where? This Khanjar exercise was held in Kyrgyzstan, right? This is the 12th edition of this exercise. Exercise was initiated in 2011, that is the inaugural edition, and the first edition was held in 2011. If we talk about the 11th edition, it was held in Himachal Pradesh, right? And here Indian Army took part in this particular exercise. Next
Next is India and Bangladesh. They have begun the 6th Corpet and 4th Bongo Sagar exercise. What is Corpet? It is your coordinated patrol, right? This is the 6th edition of the Corpet exercise between India and Bangladesh, and the 4th edition of the Bongo Sagar exercise, right? This exercise was be held along the designated areas along Bangladesh and Bay of Bengal, right? In this, Bangladesh Navy took part, and from Indian Navy, and Indian Navy took part also along with Bangladesh Navy. From Indian Navy, it was INS Ranveer that took part in this in this exercise, right? Take a note of this. That is 4th edition of Bongo Sagar and 6th edition of the Corpet exercise. Next, students, remember SEBI, Securities and Exchange Board of India, they have recently notified some regulatory framework for the SME IPOs, right? They have introduced a profitability requirement, and they have kept a 20% limit of the total size for the offers for sale during the IPOs. Also, the sharing of the selling shareholders, they are not allowed to offload more than 50% of their existing holding at once during the IPO. Correct? Take a note of this. These things are important, right? Next. Next is Food and Agriculture Organization. This is an arm of United Nations. They have released a report on the global grain production and food situation 2025, where they have predicted the wheat production at 796 million tons. Right, this is for the year 2025. Right, this is an increase of 1% from the last year, and the growth is driven by expanded wheat planting in the European Union, specifically in France and Germany. Right, also UN Food and Agriculture Organization, they expected that the world grains reserve will shrink by 1.9% by bringing it total to 869.3 million tons in 2025. Also, the rice production, it is expected to set a record of 543 million tons in 25. Right, where is the headquarter of Food and Agriculture Organization? It is in Rome, Italy. Next is India has chaired the 68th session of the UN Commission on Narcotics Drug for first time. Right, India wants to eliminate the heavy usage of drugs by the young people, right, because it can lead to a very bad life ahead. Correct. So India wants to eliminate the drug and illegal use of the drug. So for the same reason, India has chaired the 68th session of the UN Commission on Narcotic Drug, and this marks the first time India is holding this position. Correct. And this session has drawn around 2000 delegates from over 150 countries. And here, if we talk about this European Union, correct, they are also working towards how they can reduce the use of drugs by the individuals, illegal drugs, right? Also, on 11th of March, there was a campaign that was held, that is Nasha Mukt Bharat Abhiyan. The focus aim here is to basically to eliminate the use of illegal drugs by the individuals and general public. Apart from this, Armenia's Andrnik, right, has been elected as the first vice chairman at the United Nations CND, that is United Nations Commission on Narcotic Drugs. Next is banking and finance students. India's top life insurance in 2025, it is HDFC Bank, HDFC Life Insurance Company. Then a Max Life Insurance Company, LIC, has led in the terms of claim settlement. Let me show you the data here first. It is IRDAI. They have released the annual data on claim settlement ratio in their latest handbook report, that is Handbook on Indian Insurance Statistics. This report provides a comprehensive information on how different insurers handle claims, which help the policymakers to make informed decisions. Right. Also, as per the report, New Delhi based Axis Max Life Insurance Limited with 99.79% CSR, that is your claim settlement ratio, in terms of the number of policies, emerged as the biggest insurer in India, followed by Mumbai Maharashtra based HDFC Life Insurance Company. Right, important, take a note of this. Then there is a Project Naman, students, that I want you all to remember. What is this Project Naman? Project Naman is basically, it is a collaborative initiative designed to offer pension-related services, government to citizen services, and business to consumer services to the veterans and their families. Right? Take a note of this Project Naman. Next is appointments and resignations, students.
Recently, BCCI has appointed Rajiv Shukla and Ashish Sheller for ACC leadership roles. Directly take a note of it. So here you can see BCCI, that is headquartered in Mumbai, Maharashtra, has appointed its Vice President Rajiv Shukla as the representative on the Board of Directors of Asian Cricket Council. Former BCCI Treasurer Ashish Sheller will serve as an executive member of the ACC, right? And with BCCI Secretary Jay Shah taking over as the chair of the ICC, his position on the ACC board became vacant as he previously served as the ACC President. Right, next is science and technology students. Foxconn has launched the first large language model, Fox Brain. Right, this is the Taiwan's first large language model that is designed to optimize the manufacturing processes and supply chain management. It is specifically tailored for traditional Chinese and Taiwanese language styles, integrating advanced reasoning capabilities. Next is sports. ICC Championship Trophy 2025 was held and India has beaten New Zealand by 4 wickets and claimed third championship trophy title. I repeat, India, we have won the 9th edition of the ICC Championship Trophy. We defeated New Zealand in the final and this is India's third win in this tournament. Previously, it was 2002 when we won this, then in 2013 and now in 2025. Who was the captain here? Rohit Sharma. Correct. Next is Assam's finance minister Ajanta Niyog has presented 2.63 lakh crore rupees budget for FY26. If we look at the budget here, the budget expenditure of the state saw an increase of 250%, while the capex has increased to 24,964 crore rupees in FY25. The state government has allocated 342 crore rupees to provide one-time financial support of 5,000 rupees for tea workers. Under the new state scheme, Chief Minister's Gibbon Perina, monthly financial assistance of 2,500 crore will be provided to students who graduate from government universities and colleges in 2025 for a period of 1 year. And Mukhya Mantri Nijut Moina Asoni, right, for this scheme 391 crore rupees has been allocated, which aims to promote girls' higher education and fight against the child marriage. So for them also the budget, remember the name and the budget for which this has been allocated. Next is Maharashtra's Finance Minister Ajit Pawar has presented 7.2 lakh crore rupees state budget for FY26. Here you will be seeing Maharashtra's FD fiscal deficit stands at 1,36,234 crore rupees, remaining below the 3 limit of the GSDP. Then Maharashtra's revenue receipt for FY25 are projected at 4,99,463 crore rupees, up from 4,86,160 crore rupees in FY24. Who is the Chief Minister of Maharashtra? Devendra Fadnavis. Who is the governor here? C.P. Radhakrishnan. And remember, there is a Jawaharlal Nehru port here and Mumbai port here. Next, Union Minister J.P. Nadda has announced 2 new schemes for the girl child welfare in Tripura state. I repeat, J.P. Nadda ji, our Union Minister of Health and Family Welfare, announced 2 new welfare schemes for female children in Tripura. The announcement took place during the 2-year celebration of the BJP-led Tripura government at the Swami Vivekanand Maidan in Agartala. The 2 welfare schemes are Mukhya Mantri Balika Smriddhi Yojana first and second is your Mukhya Mantri Kanya Atmanirbhar Yojana. These are the 2 schemes here. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Who is the author of recently released book Tipu Sultan, the Saga of the Mysore Intrigue? It is Vikram Sampath, right? And here he described Tipu Sultan as a complex figure in the Indian history who resisted the imposition of British colonial control over India. Next, who is the author of recently released book Hindu Rashtra Hai Kya? The Fight for the Republic and Reflections on Culture, Media and Science. So who is the author here? Sitaram Yechuri. Next, which organization has published the recently launched Ravi Prashar's book New Bharat, Modi's Vision and Development for 2019 to 2024? It is Hindustan Times. This book is authored by Ravi Prashar and published by Hindustan Times. Next, in December, HarperCollins Publishers India announced the release of the memoir Bring It On, The Incredible Story of My Life by which prominent Indian athlete? It is Deepa Malik.
Next, who authored the book? Who authored the book? Chalk on Food Economics and Society, co-authored by Shane Oliver, launched in December. So, who authored it? Authored by Abhijit Vinayak Banerjee. Abhijit Vinayak Banerjee. So, these were your books and authors. Now, let's move to obituary. First question is Shashi Ruiya, the co-founder of Dash, has recently passed away in Mumbai, Maharashtra. So, Shashi Ruiya is the co-founder of Esser Group Fund Limited, right? For Esser Group. Next is Sivapatham Vittal, regarded as the father of endocrine surgery. Father of endocrine surgery, Sivapatham Vittal, in India, has recently passed away at the age of 83. He was born in 1941 in Chennai, Tamil Nadu. Also, he was honored with Padma Shri Award in 2011 for his contribution in the field of medicine. Next, Thomas Eugene Kurtz, the co-creator of BASIC programming language and the Dartmouth time sharing system, has passed away in Lebanon in USA. Correct? He was born in 1928 in Illinois, USA, and he was the founder of this BASIC programming language. Next, Omcheri N. Pillai passed away at the age of 100 in New Delhi. What is the profession of Omcheri N. Pillai? He is a writer and he recently passed away at the age of 100. Born in 1924 in Kottayam, Kerala. Next is name the Indian classical musician and sarod player who passed away in November 2024. So Ustad Ashish Khan has passed away and he was honored with Sangeet Natak Academy Award in 2004. Next, name the former Chief Minister of Karnataka and Padma Vibhushan awardee who passed away in December 2024. Right option is Somanalli Malaya Krishna. And he was honored with Padma Vibhushan in the year 2023. Next, in December, Indian Dash player Raj Manchanda, also known as the Old Fox, passed away in New Delhi. So, Indian squash player known as Raj Manchanda, also known as Old Fox, passed away at the age of 79 and he was honored with Arjuna Award in 1981 or in 1983. Next, renowned Dash and Padma Shri awardee Purushottam Upadhyay passed away at the age of 90 in December 2024. So, renowned Gujarati singer and Padma Shri awardee Purushottam Upadhyay passed away at the age of 90, right? And he was honored with Padma Shri. He was honored with Padma Shri in 2017. Next, in December, renowned Indian tabla player and Padma awardee Zakir Hussain Alakara Qureshi passed away at the age of 73. When did he receive Padma Vibhushan Award for his immense contribution to music? It was in 2023. Next, in December, renowned Baiga tribal Dash Jodhia Bai passed away at the age of 86 in Umrai district of Madhya Pradesh. So, renowned Baiga tribal artist Jodhia Bai passed away at the age of 86, right? She was honored with Padma Shri in 2023. She played a key role in bringing the Baiga tribal art to the global recognition. Next, name the renowned folk artist and Padma Shri awardee who passed away in Warangal, Telangana. So, Darshanam Mogilliya, right? Passed away at the age of 73 in Telangana. He was born in 1951 in Andhra Pradesh, that is now Telangana, honored with Padma Shri in 2022. Next is renowned Dash and scholar K.V. Raman, known for his invaluable contributions to the ancient history, temple architecture, recently passed away. So he was a renowned archaeologist and scholar K.V. Raman, passed away at the age of 90, born in 1934 in Tamil Nadu, Chennai. Next, in December, Terry Griffiths, former World Snooker champion, passed away at the age of 77. Which country did Terry Griffith belongs to? He was from United Kingdom. Next, in December, Dash Tulsi Gowda, also known as the Encyclopedia of Forests, passed away at the age of 86. So recently, this Tulsi Gowda, who is he? He is environmentalist. Tulsi Gowda, also known as the Encyclopedia of Forests, passed away at the age of 86. In 2021, she was awarded with Padma Shri. Next, recently, Om Prakash Chautala, the 5-time Chief Minister of Haryana, passed away at the age of 89.
Next, Padma Shri awardee and founder director of Institute of Development Studies, Kolkata, dash recently passed away. So, Padma Shri awardee and founder director of the Institute of the Development Studies, Kolkata, Amaya Kumar Bagchi, recently passed away. Honored with Padma Shri in 2005. Next, in December, renowned Indian dash and Padma awardee Sham Benigal passed away at the age of 90 in Mumbai, Maharashtra. So he is a renowned Indian filmmaker who passed away recently. Next, renowned Malayalam writer, filmmaker and Padma Bhushan awardee M.T. Vasudevan Nair passed away at the age of 91 in Kozhikode, Kerala. When did he receive Padma Bhushan award for literature and education? So he received this award in 2005. Next, in December, former president, chairman and chief executive officer of Suzuki Motor Corporation, Osamu Suzuki passed away. When did he receive Padma Bhushan award, that is India's third highest civilian award, for his contribution to the country's economic development through the automobile industry? So in 2007 he received this Padma Bhushan. Students, is your homework question. First is, what is that income up to which no tax has to be given by the Indians? Second question, recently who has inaugurated the Sci-Fi Science Festival in India? Where was this held and who inaugurated it? Third question, recently Swaril, this is a super application that was launched by which ministry and for what reason? And fourth question, students, tell me which is the world's second most downloaded application in the foods and drink category. Tell me. It is an Indian startup. So next, students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सेकेंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जैसे खरीफ एंड राबी क्रॉप्स में जो आपकी क्रॉप्स आ जाती है उनका कितनी प्रोडक्शन रही और कितना एस्टीमेट रहेगा। देन हम बात करेंगे फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 की, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। देन इंडिया एंड आर्मेनिया के बीच में एक MOU साइन किया गया ताकि मेडिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके दोनों कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर। देन इसी के अलावा 24 रीप्रिंटेड सास्तु साहित्य बुक्स एंड 150 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया गया हैदराबाद में। किनके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। अहमदाबाद में, राइट, किनके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। तो ऐसी काफ़ी सारी न्यूज़ आज की वीडियो में रहेंगी। स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये सेशन। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपके लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब हमें ज़रूर करना अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म दैट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application, student, by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO, and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल अफेयर्स पे। स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने भी सेकेंड एडवांस एस्टीमेट रिपोर्ट रिलीज की गई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप, जो कि खरीफ एंड राबी आ जाता है, राइट। इस रिपोर्ट में इन्होंने रिमोट सेंसिंग, वीकली
क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप स्टेट रिपोर्ट्स का सारा लिया ये प्रोडक्शन यहाँ पे डाटा लाने के लिए, राइट। यहीं पे अगर हम देखें खरीफ क्रॉप्स की, तो इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि 1663 लाख मेट्रिक टन्स यहाँ पे फूड ग्रेन्स ग्रो किए जाएंगे खरीफ के। वहीं पर राबी की बात करें तो यही 1645 लाख मेट्रिक टन्स डाटा रहने वाला है। राइस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो कि एक खरीफ क्रॉप है 1206 लाख मेट्रिक टन्स रहेगा। वहीं पे अगर हम देखें वीट की, वीट का रहेगा 1154 लाख मेट्रिक टन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0, यह भी हैदराबाद तेलंगाना में हमें देखने को मिला, राइट। एंड यहीं पे एक NFDB एप्लीकेशन लॉन्च की गई। ये NFDB क्या है? NFDB है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव के द्वारा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसका फोकस रहेगा कि हम फिशरी से रिलेटेड जो सस्टेनेबिलिटी है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उनके ऊपर फोकस कर सकें, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके यहाँ पे इकोसिस्टम में। एज वेल एज यहाँ पे जो इवेंट था ना, इसका मेन इस स्टार्टअप फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का मेन एम क्या था कि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करना है फिशरी सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने हैं, एज वेल एज एक्वाकल्चर सेक्टर को यहाँ पे हमें प्रमोट करना है। कैसे नई टेक्नोलॉजीज को ला सकते हैं, कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इस फिशरी सेक्टर को हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसी के दौरान फिशरी स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 भी हमें देखने को मिला, राइट। इसके दौरान आप देखेंगे ये लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ फिशरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 टू सपोर्ट द इमर्जिंग स्टार्टअप्स in manufacturing and related fields in the fishery sector, and under this program 10 विनिंग स्टार्टअप्स को रिसीव किया जाएगा 1 करोड़ रुपीस का फंडिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देन अभी रिसेंटली इंडिया और आर्मेनिया के बीच में एक MOU साइन किया गया ताकि मेडिकल सेक्टर में जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये दोनों काम कर सकें, नॉलेज शेयर कर सकें, एक्सपर्टीज शेयर कर सकें, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनको एक्सचेंज करके इनके ऊपर काम किया जा सके, राइट। और इवन याद हो आपको आर्मेनिया, इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था कुछ टाइम पहले, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इन्होंने रिलीज़ की 24 रीप्रिंटेड शास्त्रु साहित्य बुक्स को, एंड 150 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया अहमदाबाद में। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये जो 24 रीप्रिंटेड बुक्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, इन बुक्स के बेसिकली यहाँ पे इन बुक्स के अंदर जो नॉलेज है, लिटरेचर है, हमारा पुराने शास्त्र हैं, उनके बारे में लिखा गया है, राइट। एंड उसके मल्टीपल एडिशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, करेक्ट। देन यहीं पे 150 रुपये का जो ये कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया ऑन द बर्थ एनिवर्सरी और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य भगवत श्री बुद्धि सागर महाराज जी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये यूके एंड आयरलैंड के विजिट पे थे 4 से 9 मार्च तक। इनके द्वारा यहाँ पे इन दोनों कंट्री के साथ मिलकर ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर इसी के साथ अगर आपको याद हो, यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया जा सकता है, राइट। ये बोला जा रहा है कि 2025 के एंड तक हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर इंडिया कंबोडिया, इनके द्वारा 3rd FOC। ये FOC क्या है जो अभी हमें देखने को मिला? FOC है आपका फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, राइट। तो इंडिया एंड कंबोडिया ने अभी 3rd फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस को हेल्प किया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कॉपरेशन इन हेल्थ एंड डिजिटल टेक सेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ हमें हेल्थ केयर सेक्टर में एज वेल एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में आएंगी, एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में, राइट। इट इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स। इसी के अलावा आप देखेंगे पॉलिटिकल कॉपरेशन, ट्रेड, डेवलपमेंट असिस्टेंस, हेरिटेज कंजर्वेशन, इन सब के ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो कंबोडिया ये बेसिकली इंडिया का पार्टनर है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम इंडिया की जो पॉलिसी है, राइट, एंड इनका जो विजन है इंडिया पैसिफिक रीजन में, कंबोडिया वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलाई की तरह सामने आता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। सिप्री के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि अब बताती है वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स। अगर हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर की बात करें तो वो है यूक्रेन। 2020 से लेकर 2024 के बीच में सबसे ज़्यादा आर्म्स को इन्होंने
अभी क्या करा है, इंपोर्ट करा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जानते हैं हम लड़ाई चल रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो कंट्री आ जाती है ना वो है हमारी इंडिया, एंड इंडिया की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है, तभी ये सेकंड नंबर पे आ जा रही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। इसीलिए इंडिया का इनिशिएटिव रहता है कि हम डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें एंड उन प्रोडक्ट्स को, उन वेपन्स को, उस टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में ही बनाएं। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डाटा। राइट, इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्टर्स की, तो कौन है बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स? फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में यूएसए, देन फ्रांस, देन रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, खंजर 12। ये 12वां एडिशन रहेगा इस खंजर एक्सरसाइज की, जो कि इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुई। ये लोकेशन क्या रहेगी, किर्गिस्तान में ही हुआ 12वां एडिशन। 11वां एडिशन जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राइट, टेक अ नोट ऑफ इट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसके बाद। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिमेंबर सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दे हैव रिसेंटली notified some regulatory framework for the SME IPOs. Right, they have introduced a profitability requirement and they have kept a 20% limit of the total size for the offer for sale during the IPOs. Also the selling shareholders, they are not allowed to offload more than 50% of their existing holding at once during the IPO. Correct, take a note of this, these things are important. Right, नेक्स्ट है इंडिया एंड बांग्लादेश के द्वारा छठा एडिशन कॉर्पेट एक्सरसाइज का कराया गया एंड चौथा एडिशन ऑफ बोंगो सागर एक्सरसाइज। कॉर्पेट क्या है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। राइट, तो इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इंडिया की तरफ से INS रणवीर, इंडियन नेवल शिप रणवीर का यहाँ पे हमें पार्टनरशिप, इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स, यूएन का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की ऑन ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन एंड फूड सिचुएशन 2025 में, जहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि वीट का जो प्रोडक्शन है 796 मिलियन टन तक पहुँच जाएगा, जो कि 1% ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वहीं पे इन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड के ग्रेन रिजर्व्स हैं, राइट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्ल्ड ग्रेन रिजर्व्स हैं वो हमें कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखे बाय 1.9%। वहीं पे दूसरी तरफ जो राइस प्रोडक्शन है वो एक नया रिकॉर्ड सेट करेगा इन FY25। सबसे ज़्यादा इस साल हमने राइस को ग्रो करा। अगर बात करूँ UN का आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, रोम इटली में रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी चेयर किया 68th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। राइट, एंड दिस इज बेसिकली फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर फर्स्ट टाइम एंड इंडिया जंग छेड़ना चाहता है इलीगल यूज़ ऑफ ड्रग्स पे। बच्चों का भविष्य खराब होता है इससे, ड्रग्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। राइट, एंड इसी से जो सेल्स होता है, राइट, जो इलीगली इंडिया में जैसे ड्रग्स आ जाते हैं चाहे वाटरवेज के थ्रू या किसी भी माध्यम से, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको रंगे हाथों एक उसी टाइम तक पकड़ा जा सके जब पहले, राइट, ना कि वो कहीं मार्केट में लोगों तक पहुंच सके। करेक्ट, तो इसीलिए इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंड इन्होंने चेयर किया 68th सेशन ऑफ UN कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। 11 मार्च को हुआ, जिसपे एक कैंपेन भी हुआ था जिसका फोकस था नशा मुक्त भारत अभियान। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, आर्मेनिया के एंड्रेनिक ये इलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट वाइस चेयरमैन एट द UNCND, जो कि है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे स्टूडेंट्स। इंडिया टॉप लाइफ इंश्योरेंस इन 2025 की बात करें, HDFC, मैक्स लाइफ एंड LIC इन लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशो। राइट, अगर हम बात करें एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है 99.79% का रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें HDFC की, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं, 99.97% आपका क्लेम सेटलमेंट रेशो यहाँ पे रहेगा। राइट, वहीं पे अगर हम देखें LIC इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है एंड ये टॉप करता है फॉर इन द मोस्ट नंबर ऑफ द पॉलिसी सेटल्ड विद इन द 30 डेज। IRDAI के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। राइट, इंडिया टॉप लाइफ इंश्योरेंस का। IRDAI के चेयरमैन कौन रहेंगे, देवाशीष पांडा, हेडक्वार्टर रहेगा हैदराबाद तेलंगाना में। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, इसके बाद एक चीज़ याद रखेंगे, एक प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया था जो इनिशिएटिव रहेगा बेसिकली जो डिज़ाइन करता है
pension related services, government to citizen services, business to consumer services to the veterans of the forces and their families, उनके लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया. टेक अ नोट ऑफ इट. प्रोजेक्ट नंबर में देखें HDFC बैंक, इंडियन आर्मीज डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, देन कॉमर्स सर्विस सेंटर्स, इन सब का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा. इन्होंने MOU साइन किया ताकि ये प्रोजेक्ट नंबर को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके. 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा. एक था सितंबर 23 से, राइट, और दूसरा है मार्च 2025 से. नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे. स्टूडेंट्स, BCCI ने अपॉइंट किया राजीव शुक्ला को एंड अनीश सेलार को एज द ACC लीडरशिप रोल्स के लिए, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजीव शुक्ला ये रिप्रेजेंट करेंगे BCCI को एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, वाइल आशीष सेलार विल टेक ऑन द रोल्स ऑफ द एक्स ऑफिशियो बोर्ड मेंबर. वहीं पे BCCI सेक्रेटरी जय शाह ये नए चेयरपर्सन बन गए हैं ICC के, एंड इनके जाने के बाद ये पोजीशन खाली रही. नेक्स्ट साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स. फॉक्सकॉन, राइट, ये ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर रहेगी. इनके द्वारा लॉन्च किया गया पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉक्स ब्रेन पर, राइट. ये एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये डिज़ाइन किया गया ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना एंड सप्लाई चेन है उसको ऑटोमेट किया जा सके, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, राइट. AI को यूज़ करके यहाँ पे जो कोर ऑपरेशंस हैं उनको एनहेंस करने का ये काम करेगा. एंड ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ एंड ताइवानीज़ लैंग्वेज के स्टाइल्स को टेलर किया करके बनाया गया है, एंड इनकी लैंग्वेज को ईजिली ये समझ सकेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर. स्टूडेंट्स, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की बात करें, इंडिया बीट न्यूजीलैंड बाय 4 विकेट्स एंड क्लेम 3rd चैंपियनशिप ट्रॉफी टाइटल. तो हमारी क्रिकेट टीम इंडिया ने, मेंस क्रिकेट टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल्स में हरा दिया, राइट. एंड इन्होंने 9वां एडिशन जीत लिया है ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी का, एंड इंडिया के द्वारा ये ट्रॉफी का टाइटल ये तीसरी बार यहाँ पे जीता गया है, 3rd टाइम. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट. असम के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग, इन्होंने प्रेजेंट किया 2.63 लाख करोड़ रुपए का बजट फॉर FY26. यहाँ पे बजट पर अगर हम बात करें, इनका इंक्रीज देखने को मिला ऑफ ऑलमोस्ट 250%, वाइल द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू 24,964 करोड़ रुपए. वहीं पे देखें स्टेट गवर्नमेंट ने अलोकेट किए 342 करोड़ रुपए ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके 5,000 रुपए का, किनको, टी वर्कर्स को. इंपॉर्टेंट. दूसरा आ जाता है चीफ मिनिस्टर्स जिबॉन प्रेरणा. ये एक स्कीम लॉन्च की गई जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 2,500 रुपए की टू स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस 1 साल के लिए. एंड मुख्यमंत्री निजुत मोयना असोमी, ये स्कीम के अंडर 391 करोड़ रुपए लोकेट किए गए कि गर्ल्स की हायर एजुकेशन एंड इनके खिलाफ जो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ जो जंग है उनको यहाँ पे छेड़ा जा सके. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार. इन्होंने प्रेजेंट किया 7.2 लाख करोड़ रुपए का स्टेट बजट फॉर व्हाट, एंड इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर FY26. यहीं पे देखेंगे हम जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 7.2 लाख करोड़ रुपीज़ का, राइट, विद द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन रेवेन्यू रिसिप्ट टू 5,60,000 करोड़ रुपीज़. वहीं पे जो महाराष्ट्र का फिजिकल डेफिसिट है ये 1,36,234 करोड़ रुपए रहेगा, जो कि विद इन द लिमिट है ऑफ द 3% ऑफ द GSDP. यहीं पे अगर हम देखें 9,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलोकेट किए गए, 500 करोड़ रुपए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के लिए ताकि उसको यूज़ किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसलिए यहाँ पे यूज़ किए गए. महाराष्ट्र की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा जी ने अनाउंस की 2 नई स्कीम्स फॉर गर्ल चाइल्ड वेलफेयर त्रिपुरा में. कौन कौन सी स्कीम है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना पहला, दूसरा है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना. ये 2 स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, 2 नई वेलफेयर स्कीम्स फॉर फीमेल चिल्ड्रन इन त्रिपुरा, किनके द्वारा, JP नड्डा जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन इज UN वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब. तो 27 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN वर्ल्ड फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, करेक्ट. एंड इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है. पहली बार सन 2006 में इसको ऑब्जर्व किया गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ आयुर्वेदा. तो 29 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल आयुर्वेदा डे, राइट. एंड आयुर्वेदा का जो रोल है उसके बारे में, जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो प्रिवेंशन कॉज हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड जो हमारी हेल्थ पे इस पर इफेक्ट पड़ता है, राइट, ये जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है.
तो 29 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट, इंडियन आर्मीज इन्फेंट्री डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। कब? तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इस डे को? 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं ये डे टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इन्फेंट्री इन प्रोटेक्टिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 28 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। पहली बार सन 2002 में इसको ऑब्जर्व किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एनिमेशन। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो 29 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। पहली बार 2023 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है correct to raise awareness of the importance of care and support in fostering gender equality and sustaining the societies and economies. Next, when is UN World Cities Day observed? तो World Cities Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। सिटीज़ के बारे में बेटर लाइफ हो, बेटर सिटी हो, बेटर लोकेलिटी हो, बेटर सोशल लाइफ हो, अर्बनाइजेशन अच्छा हो, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वीगन डे। वीगन क्या होता है आपका? जिसमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स ना हो, राइट। एनिमल रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ना हो, वो डाइट को वीगन डाइट कहते हैं। तो वर्ल्ड वीगन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 नवंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। 1994 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 2 नवंबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। मतलब जर्नलिस्ट जो काम करते हैं, राइट, वो प्रॉपर तरीके से कर सके, बिना किसी रोक टोक के कर सकें एंड उनके खिलाफ जो हम प्रोटेक्शन उनको दे सकें, राइट, उनको सेफ रख सकें, ये डे उसको हाईलाइट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन 1 राइट है, राइट। विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। एंड दिस डे इसको ऑब्जर्व किया जाता है सीवीसी के द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, जो कि प्रमोट करता है इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। इसकी एक थीम याद रखेंगे विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। इन्हीं को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। इनको सरदार का टाइटल मिला था जो इनका एक्सेप्शनल लीडरशिप है उसके लिए। एंड इस साल हमने 149th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 3 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू सेफगार्ड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। पहली बार सन 2022 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है सुनामी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, एंड इसको पहली बार 2016 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो कब ऑब्जर्व करते हैं इस डे को? हम ऑब्जर्व करते हैं 6 नवंबर को, करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, in the past 60 years, almost 40% of all the internal conflicts have been linked to exploitation of natural resources. नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? तो 7 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। एंड लेवेंडर रिबन यहाँ पे थीम रहेगी, सिंबल रहेगा आपका नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे का, राइट। पहली बार इसको 2014 में ऑब्जर्व किया गया था, 7 नवंबर 2014 को। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे को ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब। तो 8 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम याद रखेंगे, रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। पहली बार 2012 में इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो कब ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज डे? 9 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस
इंडिया, ताकि जो लीगल सर्विसेज हैं और वो प्रोवाइड की जा सके मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, एंड कोई भी व्यक्ति जिसको लीगल एड की ज़रूरत है वो उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। नेक्स्ट, 136वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन कब सेलिब्रेट की गई? तो ये 7 नवंबर को सेलिब्रेट की गई, राइट। एंड डॉक्टर सीवी रमन, इनको रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, राइट। काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे। 1888 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। भारत रत्न से इनको 1954 में सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल एजुकेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इस साल 136वीं एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी और पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है व्हेन इज यूएन वर्ल्ड डायबिटीज डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, राइट। तो कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे को? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स, ये आप मुझे बताओ होमवर्क के तौर पे, राइट। इसी के अलावा अगर पूछें वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, बात करें वर्ल्ड न्यूमोनिया डे 12 नवंबर, हम बात करें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या फिर जन प्रशासन दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे और मेक थिंग्स ईजियर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को। डेट आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके। इसके अलावा चिल्ड्रंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राइट। उनका जो बच्चों के लिए जो प्यार था, राइट, उसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न अवार्ड से भी, एंड इनको 1970 में पोस्ट होम्योसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको वर्ल्ड पीस काउंसिल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड फाइट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन 15 नवंबर को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल प्रेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि प्रेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करा सके, एंड ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर को, राइट, जो कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है हमारी प्रेस, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सच को बाहर लाती है एंड इनके ऊपर कोई दबाव ना आ सके किसी भी तरीके से, एंड ये फ्रीली यहाँ पे काम कर सके इन द सोसाइटी। नेक्स्ट, नेशनल एपिलेप्सी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो नेशनल एपिलेप्सी डे हम 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट। पर्पल कलर यहाँ पे बेसिकली एसोसिएटेड है एपिलेप्सी से, राइट, बिकॉज इट इज़ द कलर ऑफ लेवेंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 17 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। पहली बार 1941 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, राइट। नेक्स्ट है व्हेन इज वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 19 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट, एंड पहली बार इसको 2022 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। थीम रहेगी इसकी टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, एंड एक इसका सिंबल है हमिंग बर्ड। ये याद रखेंगे, ये एक सिंबल रहेगा वर्ल्ड टॉयलेट डे का, जो कि एसोसिएटेड है विद टॉयलेट्स विच इज स्मॉल बट माइटी लाइक ह्यूमन बर्ड, राइट। पहली बार इसको 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल इंटीग्रेशन डे या फिर कौमी एकता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है एंड किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस 19 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर? वो हैं इंदिरा गांधी जी, करेक्ट। एंड यूनिटी, पीस, लव ये प्रमोट करने के लिए अक्रॉस द डाइवर्स कम्युनिटीज़ इन इंडिया ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी में कौमी एकता वीक भी याद रखेंगे। कौमी एकता वीक ऑब्जर्व किया जाता है 19 से 25 नवंबर तक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे। इसकी एक थीम रहेगी पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स, ये यहाँ पे थीम रहेगी। पहली बार 1999 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 19 नवंबर को ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। पहली बार 2014 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। अभी दिसंबर में हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया इन्होंने अनाउंस किया रिलीज ऑफ द मेमोयर ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय विच प्रोमिनेंट इंडियन एथलीट।
तो दीपा मलिक के द्वारा यहाँ पे ये बुक जो कि है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ को लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट थी। नेक्स्ट, किन्होंने अभी ऑथर करी चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जिसको को ऑथर किया गया शेन ऑलिवर के द्वारा, लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। तो अभिजीत विनायक बनर्जी के द्वारा इस बुक को को ऑथर किया गया है शेन ऑलिवर के साथ मिलके, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अब कुछ ऑबिटरी पर। पहला है शशि रुइया, द को फाउंडर ऑफ एसआर ग्रुप। इनका रिसेंटली निधन हो गया इन मुंबई महाराष्ट्र 81 की एज में। 1943 में इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। नेक्स्ट, शिवापट्टम विट्ठल, जिनको बोला जाता है कि द फादर ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 2011 में एंड 1941 में चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, थॉमस यूजीन कर्ट्स, जो कि को क्रिएटर है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एंड द डार्टमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम के। इनका निधन हो गया लेबनान में इन यूएसए इन नवंबर 2024। तो याद रखेंगे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर, अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ओम चेरी एन पिल्लाई, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100 इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ओम चेरी एन पिल्लाई? तो ये एक राइटर थे, ठीक है। 1924 की एज में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 100। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड सरोद प्लेयर, जिनका निधन हो गया नवंबर 2024 में। तो वो है उस्ताद आशीष खान। 2004 में इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, उन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड पद्मा विभूषण अवार्डी का नाम बताओ जिनका दिसंबर 2024 में निधन हो गया। तो वो है सोमनल्ली मलैया कृष्णा, राइट। इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2023 में। ये 10वें चीफ मिनिस्टर बने थे कर्नाटका के एंड 19वें गवर्नर बने थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, इन दिसंबर इंडियन डैश प्लेयर, तो इंडियन स्क्वॉश प्लेयर राज मनचंदा, जिनको ओल्ड फॉक्स के नाम से भी जानते हैं, उनका रिसेंटली निधन हो गया 79 की एज में। 1945 में अबोहर में उनका जन्म हुआ था, जो कि पंजाब में, या फिर हम बोले डायरेक्टली पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1983 में। नेक्स्ट, रिनोन डैश एंड पद्मश्री अवार्डी पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 90। तो रिनोन गुजराती सिंगर हैं ये एंड पद्मश्री अवार्डी हैं। इनको 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था एंड इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन इंडियन तबला प्लेयर एंड पद्मा अवार्डी जाकिर हुसैन अलाराका कुरैशी, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 73। व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा विभूषण अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक? सो 2023 में जाकिर हुसैन अलाकारा कुरैशी, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये 4 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर है। इनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण सभी से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1988 में, पद्म भूषण से सन 2002 में, पद्म विभूषण से 2023 में। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन बायगा ट्राइबल आर्टिस्ट जोध्याया बाय, इनका रिसेंटली निधन हो गया 86 की एज में इन द उमराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में। नेक्स्ट, नेम द फोक आर्टिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी हु पास्ड अवे इन वारंगल तेलंगाना। सो दर्शनम मोगलिया, राइट। इनका निधन हो गया 73 की एज में इन वारंगल तेलंगाना। 1951 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पद्मश्री से इनको सन 2022 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, इन नवंबर रिनोन डैश एंड स्कॉलर के.वी. रमन, जो कि अपनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के से फेमस है टू एंशियंट हिस्ट्री, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये एक रियोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है, के.वी. रमन, राइट। टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है टेरी ग्रिफिथ्स, फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, जिनका निधन हो गया 77 की एज में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इन दिसंबर डैश तुलसी गौवड़ा, ऑल्सो नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। तो ये क्या है? ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है तुलसी गौवड़ा, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेंटली ओम प्रकाश चौटाला, जो कि 5 टाइम चीफ मिनिस्टर हैं किस स्टेट के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। तो ये चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 5 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा।
नेक्स्ट है पद्मश्री अवॉर्डी एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट स्टडीज ऑफ कोलकाता, जो कि हैं अमैया कुमार बागची। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2005 में। नेक्स्ट, इन दिसंबर रिनोन इंडियन डैश एंड पद्मा अवॉर्डी श्याम बेनिगल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 19, मुंबई महाराष्ट्र। तो ये रिनोन इंडियन कौन है? ये एक फिल्म मेकर हैं, इनका निधन हो गया। इन्होंने 18 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। पद्मश्री एंड पद्मा भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से 1976 में एंड पद्मा भूषण से 1991 में। नेक्स्ट, रिनोन मलयालम राइटर, फिल्म मेकर एंड पद्मा भूषण अवॉर्डी एम.टी. वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 91 इन कोझिकोडी, केरला। व्हेन डिड ही रिसीव द पद्मा भूषण अवार्ड फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन? तो 2005 में इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ओसामू सुजुकी, इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है कि व्हेन डिड ही रिसीव पद्मा भूषण अवार्ड? तो 2007 में इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एंड ऑटोमोटिव सेक्टर से इंडिया में जो ये डेवलपमेंट लाए हैं उसको ऑनर करने के लिए इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन पे। पहला है मारुति सुजुकी के कौन बने हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड वो कौन किसको सक्सीड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, अभी बताओ रिसेंटली बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, किनको अभी अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ GSMA बोर्ड का, राइट। एंड फोर्थ, सिटी बैंक इंडिया के कौन बने हैं नए हेड, राइट। तो ये चार आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से।